So hi guys and welcome to our today's video in which we are gonna discuss our chapter number 1 of English Broadway. It is a new Broadway book of class number 7. So जिनको भी chapters समझ में नहीं आते हैं वो हमारी videos देख के इन chapters को समझ सकते हैं. So section first is Dreams of Future. Unit first, section first is Dreams of Future. So now let us start reading it. Little Women is a very famous novel by Louisa May Alcott. It tells us the story of the March family, a mother and her 4 daughters. So what we will be reading in this chapter. So basically, there's one mother and she has 4 daughters: Meg, Jo, Beth and Amy. The 4 daughters are Meg, Jo, Beth and Amy. And the father is away at war. मतलब वो जंग पे गया हुआ है. He is away at war. And the mother guides the family throughout the troubled times, and the girl play and work together and tease one another, and all sisters do, yet they have a deep love for one another. And Laurie is a boy who lives next door to March family. अभी March family में क्या है, वो अपने अमीर दादाजी के साथ रहता है. एंड द गर्ल्स befriend him and provide company to be the lonely boy. तो भी क्या होता है, जो बॉय होता है वो बिल्कुल ही अकेला होता है, क्योंकि वो उनके जो ग्रैंडपा होते हैं, जो उसका जो ग्रैंडफादर होता है वो बहुत ही ज़्यादा रिच होता है, इसीलिए वो उसको टाइम नहीं दे पाता, इसलिए वो क्या होता है, लोनली होता है, बहुत ही ज़्यादा अकेला होता है. इसीलिए जो ये 4 लड़कियां, ठीक है, उसको मतलब उसका दोस्त बन जाती हैं, उनको कंपनी प्रोवाइड करती हैं. एंड दिस एक्सट्रैक्ट अबाउट दीज यंग पीपल्स ड्रीम. एंड ये स्टोरी किसके बारे में है कि ये बड़ा होकर क्या बनना चाहते हैं, व्हाट आर देयर ड्रीम्स ऑफ फ्यूचर. One day, Laurie, from where he lays in garden, saw the sisters set out for a walk. So what he noticed that the sisters, the 4 sisters, the 4 sisters were going to the hill. मतलब वो हिल की तरफ जा रही थी. He was laying in the garden. The boy was laying in the garden. He was playing in his garden. He was मतलब वो गार्डन में अपने लेटा हुआ था. एंड उनने उस 4 सिस्टर्स को मतलब वॉक करते हुए देखा. एंड वेयर आर द गर्ल्स गोइंग, तो उसने सोचा कि ये सारी कहाँ जा रही हैं, वेयर आर द गर्ल्स गोइंग, ही थॉट. एंड ईच वोर अ लार्ज हैट, ईच हैड अ लार्ज हैट on his head, and each had a bag on their shoulder, and each carried a long stick. उनके हाथों में एक लंबी सी स्टिक थी. each carried a long stick in her hand, and Meg had something to sit on, Jo a book, Beth a basket. So all girls had something. They walked one behind the other. Are they going to the waterfront? अभी waterfront का क्या मतलब है? You can see here in the word meaning. Waterfront's meaning is a part of a town or an area that is next to water. कि मान लो अगर ये है आपका टाउन एंड नेक्स्ट टू वाटर, मतलब वाटर इसके सामने है. Waterfront मतलब a part of town in an area that is next to water. Okay, so they were going to the waterfront, thought Laurie, but they went out of the garden. मतलब वो अपने गार्डन से बाहर निकली. Down the road and began to climb a hill leading to the woods. अभी woods क्या है? What is woods? Actually woods is an area of trees smaller than a forest. कि वो एरिया होता है ट्रीज का, बट द एरिया इज स्मॉलर देन अ फॉरेस्ट, और यू कैन से एज अ स्मॉल फॉरेस्ट. ठीक है. सो द गर्ल्स वर गोइंग टू द वुड्स ऑन द टॉप. वेल आई थिंक दे माइट हैव आस्क्ड मी, कि उन्हें मुझको भी पूछना चाहिए था कि वो अकेले जा रही हैं, उन्हें मुझे भी पूछना चाहिए था. लॉरी डिसाइडेड टू फॉलो देम एंड सी व्हाट इट ऑल मेंट. तो वो उनका पीछा करने लगा. बाय द टाइम ही वॉज रेडी टू गो, he could not see the girls. That after some time he was not able to see the girls, but at last he found them. Where he found them sitting on the ground under some trees. They did not see Laurie. मतलब लॉरी को वो देख नहीं पा रही थी जो लड़कियाँ थी. The girls did not see the Laurie, and he stood behind a tree. He was behind the tree, like hide किया हुआ था वो. He was hiding behind the tree, watching them. It was a pretty picture. Pretty picture मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था. मतलब सारी ऐसे बैठी थी. Meg was mending, Beth was playing with her doll, Amy was drawing, and Jo was making some socks. इससे आपको क्वेश्चन आ सकते हैं. ये आपको याद रखना पड़ेगा कि सारी क्या कर रही थी. सो Meg was mending. मैं आपको एक अच्छा तरीका बताऊँ. देखो M से Meg है, M से mending है, ऐसे याद रख लो. Beth was playing with her doll, Amy was drawing, and Jo was making some socks as she read aloud. तो जो अभी ना 2 चीज़ें कर रही थी. She was making socks and वो बुक भी रीड कर रही थी साथ में. Okay. The boy felt that he should not have come to Oat to go away, but he was lonely and stay.
बट ही वॉज लोनली एंड सो ही स्टेड. तो क्या हुआ, उस फिर लॉरी ने क्या सोचा कि मुझे यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, कि ये तो मतलब लड़कियाँ ये मुझे अपने साथ नहीं खिलाएंगी, तो फिर इसलिए वो जाने का मतलब उसका ख्याल है कि चले जाते हैं. बट वो लोनली था, ही वॉज लोनली एंड ही वॉज ऑल्सो वेरी लाइक अकेला सा बोल सकते हो उसको, तो इसलिए वो रुक गया वहीं पे. देन बेथ लुक्ड अप, सॉ लॉरी एंड स्माइल. सो व्हाट हैपेंड दैट बेथ जस्ट लुक्ड अप, बेथ ने उसको देख लिया लॉरी को, एंड व्हाट हैपेंड, शी सॉ लॉरी एंड स्माइल, मतलब प्रिटी स्माइल दी. मे आई जॉइन यू प्लीज और डू यू वॉन्ट मी टू टू, he asked that may I join you, that can I join you and play with you, and Joe said of course you may, we should have asked you before, कि हमें तुम्हें पहले ही पूछ लेना चाहिए था, but we thought you wouldn't such a girls game as this, that you wouldn't join us because we are girls and we play like girly things. तो इसलिए वो बोला तो इसलिए वो बोली कि हमें लगा था कि तुम हमारी गर्ल्स के साथ नहीं खेलोगी, इसलिए हमने तुम्हें पूछा नहीं था. यू सी वी लाइक टू प्ले द कैरेक्टर्स फ्रॉम द बुक पिलग्रिम्स प्रोग्रेस. सो व्हाट हैपेंड that the girls told Laurie that they were playing a game in which they were playing the character, जो एक किरदार बोल सकते हो एक बुक की, they were playing the character of the Pilgrim Progress. Pilgrim Progress is a book written by John Bunyan in 1678. Okay, and we usually do it indoors. We don't do it outdoors. The summer we decided to go on with it an open air, कि हम लोग एक पिकनिक के जैसे करते हैं. We should go like out and just play a while. As a part of the game we wear old hat and use sticks to climb up the hill. And as the characters of the Pilgrim's Progress, what happened, मतलब उन्होंने ड्रेस भी वैसे ही किया हुआ था as the book of the Pilgrim Progress, and as a part of the game they wear old hats, उन्होंने मतलब पुरानी hats पहनी हुई थी, and they use sticks to climb the hill. Well said Meg, as it is against our rules for anyone to do nothing here, you took a book and finished reading the story. Joe can go with her socks. तो क्या हुआ, मैंने आपको बताया था कि जो के पास दो चीज़ें थी, तो जो है मेग ने उसने क्या बोला, दैट एज इट इज़ अगेंस्ट आवर रूल्स, के ये तो हमारे रूल के खिलाफ हो गया कि तुम यहाँ पे आए हो एंड कुछ करोगे नहीं, वेले बैठे रहोगे. तो इसलिए क्या हुआ, जो के पास दो चीज़ें थी, इसलिए जो ने उसे बुक पढ़ने को दे दी. शी गेव हिम द बुक दैट शी वॉज रीडिंग अर्लियर, एंड नाउ शी वॉज जस्ट लाइक वो अब सिर्फ सॉक्स ही बुन रही थी. शी विल जस्ट गो ऑन विद हर सॉक्स. Yes madam, replied Laurie, I'll do anything if you let me stay for a bit. I'll hate to be alone, for it's very dull down there. That what happened, that Laurie replied that yes ma'am, I am ready to do anything if you want me to stay, कि अगर मैं यहाँ पे रुक सकता हूँ तो मैं कुछ भी करूँगा. I will do everything if you like allow me to stay here. Okay, because it was very dull down there and काफ़ी boring सा था. The story was not a long one, that the story was a short one, कि बहुत ही ज़्यादा short सी story थी. The story was a short one, and when it was finished they sat for a time talking of all the things each wished to do in future. And then what happened, they started to talk that what things they would do in their future, because अभी आपको story का title भी पता ही है, dreams of future. Okay, wouldn't it be fun if all things we dream of doing come true? That Joe said that how fun it would be if like all the things we say about our future come true. Let us each say something we would most like to do. What about you Laurie? तो क्या हुआ, फिर जो ने बोला कि हम लोग ईच करके ना, मतलब एक एक करके हम लोग अपना जो भी है हम लोग एक एक करके क्या देंगे, हम लोग एक एक करके अपना वो देंगे, ड्रीम देंगे कि हम लोग फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं, एंड वी वुड विश दैट इट वुड कम ट्रू इन फ्यूचर. इफ़ आई टेल यू विल यू टेल मी टू, कि अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो तुम मुझे बताओगे. येस, इफ अदर्स विल टू. वी विल बिगिन नाउ Laurie. So what said Laurie? So what Laurie said, well, I would like to travel, I would see as much of the world as I wanted, then I would live in this country and become famous as a musician. तो आप लोग ये बोल सकते हैं कि उसका इंटरेस्ट जो ज़्यादा था ना वो म्यूज़िक में था, बिकॉज ही वॉन्टेड टू बिकम अ फेमस म्यूजिशियन एंड वॉन्टेड टू ट्रैवल द वर्ल्ड. एंड I never want to worry about money, business, but just enjoy myself, कि मैं money, business वगैरह के बारे में कभी भी worry करना नहीं चाहूँगा. I would like to be free and do everything I want, and that is my favorite dream. What is yours, Meg? तो इसका सपना बेसिकली क्या है कि ये ट्रैवल करना चाहता है. ही वॉन्ट्स टू बिकम
famous in future as a musician. So now we will read about Meg's dream, that what Meg want to do in future. तो बेसिकली हमने लॉरी के बारे में पढ़ लिया. आपको ये याद रखने पड़ेंगे बिकॉज इसमें से ही आपको क्वेश्चंस आएंगे. तो लॉरी ने क्या किया था कि मैं ट्रैवल करना चाहता हूँ एंड आई वांट टू बिकम फेमस इन फ्यूचर एज अ म्यूजिशियन. And Meg thought a little before saying, I like a lovely house full of beautiful things, nice food, pretty clothes, like pleasant people. It would be my house. I should have plenty of money and servants. I should never need to do any work. How I would enjoy it. I'll be do good to make everybody love me. So what happened that Meg ने थोड़ा सा सोचा बोलने से पहले, एंड देन व्हाट शी सेड दैट आई वांट टू हैव अ ब्यूटीफुल हाउस, अ लवली हाउस, पीसफुल हाउस, शांति वाला हाउस, फुल ऑफ ब्यूटीफुल थिंग, नाइस फ्रूट, मतलब नाइस फूड, अच्छा खाना हो, अच्छे क्लोथ्स हो, प्लेजेंट पीपल हो, अच्छे लोग हो, एंड वुडंट यू शेयर योर हाउस विद अ हस्बैंड. तो फिर लॉरी ने क्या बोला, जो लॉरी था, जो लड़का था, तो वो बोला कि तुम अपना मतलब जो घर है वो शेयर नहीं करोगे अपने हस्बैंड के साथ. सो आई सेड प्लेजेंट पीपल. Meg bent to fasten her shoe as she spoke and her face could not be seen. तो क्या हुआ, फास्टन का मतलब है कि वो अपनी शू लेसेस टाई करने के लिए अपना मुंह छुपाने लगी बिकॉज वो शर्मा गई थी. और उसने बोला कि मैंने प्लेजेंट पीपल बोला. ओके, why don't you say you would have a nice wise husband and some children, you know your dream house wouldn't be quite right with them, said Joe. तो फिर जो ने क्या बोला कि तुम्हारा हाउस मतलब बच्चों के बिना एंड एक अच्छे हस्बैंड के बिना तो हो ही नहीं सकता. तो इसीलिए you would have nothing but horses, pens and ink and books in yours, answered Meg. तो फिर Meg क्या बोली कि जो तुम्हारा पता है क्या ड्रीम है कि तुम बस हॉर्सेस, पेन्स एंड इंक एंड बुक्स, क्योंकि वो मतलब आप लोग ये बोल सकते हो कि वो बहुत ही ज़्यादा पढ़ाकू सी थी, जो वो लाइक बिकॉज यहाँ पे देख सकते हो ना, इंक इन बुक्स इन योर्स. येस, दैट्स क्वाइट ट्रू. आई लॉट ऑफ अरेबियन हॉर्सेस. अरेबियन हॉर्सेस इज अ ब्रीड ऑफ हॉर्सेस दैट इज़ वेल नोन फॉर इट्स इंटेलिजेंस, हाई स्पिरिट एंड आउटस्टैंडिंग strength. And room full of books. I'd had room full of books. I'd write with a magic pen so that my work would be as famous as Laurie's music. So what happened, what Joe said that I would have a magic pen जो मतलब अपने आप सारे काम कर दे. So I'd be as famous as Laurie's music, कि जितना लॉरी का म्यूज़िक फ्यूचर में फेमस होगा उतने ही मेरा मतलब काम फेमस होगा. I want to do something wonderful that won't be forgotten after I am dead, कि मैं मर भी जाऊँ तब भी मेरे काम को याद किया जाए. After even I am dead. I don't know what it will be, but I mean surprise you all one day. I think I shall write books and get rich and famous. That is my favorite dream. तो क्या हुआ कि वो मतलब ऐसे ही बोल रहा था कि मैं रिच एंड फेमस हो जाऊँगी. शी वॉज ऑल्सो सेइंग कि मैं रिच एंड फेमस हो जाऊँगी बाय राइटिंग. तो वो राइटर बनना चाहती थी इन फ्यूचर. एंड मेग ने क्या बोला था दैट आई वुड हैव अ वाइज हाउस, अच्छा सा हाउस विद ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड ऑल. एंड लॉरी ने बोला था दैट आई वांट टू ट्रैवल एंड वांट टू बिकम अ म्यूजिशियन. सो माइन इज़ टू स्टे एट होम सेफ विद फादर एंड मदर एंड हेल्प टेक केयर ऑफ द फैमिली. तो क्या हुआ, बेथ मतलब बहुत ही ज़्यादा सिंपल थी. एंड शी सेड कि मैं अपने मॉम डैड के साथ रहना चाहती हूँ एक होम में जो पीसफुल हो, सुरक्षित हो, दैट वुड बी सेफ and I would take care of my family. And said Beth, don't you wish for anything else? तो लॉरी ने क्या पूछा कि तुम कुछ और नहीं लेना चाहती. So what Beth said that since I have my piano, I have everything I want. So she was so simple that she said कि जब मेरे पास मेरा पियानो है तो मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं. I only wish we all may keep well and like बी टुगेदर, नथिंग एल्स. तो मतलब बेथ बहुत ही ज़्यादा एक अच्छी, लोग बोल सकते हो बहुत ही ज़्यादा उसका एक अच्छा कैरेक्टर था बिकॉज शी सेड दैट आई वुड हैव अ पियानो एंड नथिंग एल्स इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी, माई फैमिली एंड आई वॉन्ट नथिंग एल्स. आई वॉन्ट दैट वी ऑल वुड बी टुगेदर. आई हैव सो मेनी विशेज़ सेड आमी, बिकॉज आमी सबसे छोटी थी तो उसकी सबसे ज़्यादा विशेज़ थी. आमी वॉज लाइक सबसे ज़्यादा वो छोटी थी. बट माई फेवरेट ड्रीम इज़ टू पेंट गुड पिक्चर्स. आई वॉन्ट टू गो टू रोम टू पेंट वंडरफुल पिक्चर्स एंड बी बेस्ट आर्टिस्ट इन द होल वर्ल्ड. तो क्या हुआ, पहले तो हम लोग एक बार सबके सपनों का रिकैप ले लेते हैं. सो बेसिकली सबसे पहला किसका था, लॉरी का था. लॉरी ने क्या बोला दैट आई वुड ट्रैवल द वर्ल्ड एंड बी अ फेमस म्यूजिशियन. एंड द सेकेंड वन ऑफ मेग का था, सेकेंड वन मेग का ही था ना, येस आई थिंक मेग का ही था सेकेंड वन. तो उसने क्या बोला, आई वुड हैव
a lovely house with like pleasant people and like flowers, a huge garden. And then the next one was of Joe. तो फिर जो ने क्या बोला, that I would have a lot of Arabian horses and I want to be as famous as Laurie's music. And फिर the next one was of Beth, जिसने बहुत ही ज़्यादा simple कहा था that I want to live with my family in a peace and safe place. And फिर Amy ने बोला but my favorite dream is to paint good pictures, that मेरा favorite dream है कि मैं artist बनूँ, I would be the best artist in the world, I would go to Rome. So this was her dream. And we do not want a lot, don't we, said Larry. तो क्या बोला लॉरी ने, क्या बोला, व्हाट डिड लॉरी सेड, दैट वी वांट अ लॉट, ठीक है, एक्सेप्ट बेथ, कि बेथ को छोड़ के हम सबको कुछ ना कुछ चाहिए. वी ऑल वांट टू बी रिच और फेमस, बी इंटरेस्टेड टू नो इफ एनी ऑफ अस विल गेट आवर विशेस. So what happened? Laurie said that it would be interesting to watch in future that अगर हमारे किसी का सपना पूरा हो जाता है then what will it be? Okay, that would we like, क्या हम अपनी विशेस को पूरा कर सकते हैं और नो. एंड वेल इफ़ वी आर अलाइव 10 years फ्रॉम नाउ, लेट्स मीट, कि अगर हम 10 साल बाद, आज के 10 साल बाद ज़िंदा हुए तो हम लोग आज ही के दिन मीट करेंगे फ्रॉम 10 years फ्रॉम नाउ. एंड देन वी कैन सी हाउ मच नियरर वी केम विद आवर ड्रीम्स, कि हम अपने ड्रीम्स के कितने ज़्यादा नज़दीक आ गए वो हम लोग देखेंगे जब हम 10 साल बाद मिलेंगे. ओके, वी शुड बी वेरी ओल्ड देन, कि हम लोग तब बहुत ही ज़्यादा ओल्ड हो जाएंगे, वुड बी वेरी लाइक, क्या बोल सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा बूढ़े से हो जाएंगे. लाइक आई शेल बी 27, तो मेग बोला कि मैं तो 27 की हो जाऊँगी. तो आप लोग बोल सकते हो अगर मैं 27 में से 10 माइनस कर दूँ तो आंसर कितना आ गया, 17. सो आई कैन से दैट मेग एट प्रेजेंट इज 17 एंड यू एंड आई विल बी 26. लॉरी के फिर क्या बोला, जो ने बोला कि लॉरी तुम और मैं तो 26 के हो जाएंगे. तो लॉरी और बेथ की करंट एज कितनी है, 16 है. ओके, देन बेथ विल बी 23, बेथ 23 की हो जाएगी. 13 है उसकी करंट एज. एमी विल बी 22, एमी अभी सिर्फ 12 ईयर्स की है. ओके, व्हाट एन ओल्ड पार्टी, कि कितने ज़्यादा हम लोग बूढ़े हो चुके होंगे, व्हाट एन ओल्ड पार्टी. तो अगर आपको पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा मतलब ओल्ड कौन था एंड सबसे ज़्यादा यंग कौन था, तो आप लोग क्या बताओगे. सबसे ज़्यादा ओल्ड थी आपकी मेग, because she said that she will be 27 from 10 years from now. So if we like subtract 27 from 10 then it will be 17. तो उसकी current age है 17 and the youngest would be Annie, because अगर हम लोग 22 में से 10 माइनस करें so it is just 12. तो सबसे ज़्यादा जो ओल्ड है वो है मेग एंड सबसे ज़्यादा यंगेस्ट कौन है, एमी है. सो दिस इज़ अवर चैप्टर. आई होप यू लाइक, आपको चैप्टर समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा. आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.